نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمين يا رب العالمين اوكے ہم کلاس کی شروعات کرتے ہیں الحمدللہ بائی ویکلی ٹیسٹ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو سوال دیا گیا تھا وہ تھا ڈیفینیشن آف اعراب. اعراب کا جو ہے میننگ بتائیے. تو اعراب کا میننگ کیا ہے؟ معنی کی تبدیلی کے بغیر جو ہے صرف شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. اوکے تو میننگ چینج نہیں ہو رہا، صرف کیا ہو رہا، اس کا شکل چینج ہو رہی. ہم دیکھے تھے فار ایگزامپل محمدن، محمدن اور محمدن کا تینوں میں بھی جب وہ حالت رفع ہو یا حالت جر ہو یا حالت نصب ہو، تینوں میں بھی وہ کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. تو اعراب کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کو حرف جر پہچاننا تھا. حرف جر ایسا حرف ہوتا ہے جس کے بعد آنے والا اسم کو وہ کیا کر دیتا، مجرور کر دیتا. یہ قاعدہ ہم پڑھے تھے. تو فی کا میننگ کیا ہوگا؟ فی فی المسجد اگر ہے تو مطلب کیا ہے اس کا؟ چیٹ باکس میں لکھیے گا ان. اوکے ان یا میں. ٹھیک ہے. الا، الا کا مطلب کیا ہے؟ الی المسجدی مطلب ٹورڈ. اوکے کی طرف، اس کی طرف آتا. اوکے. علی، علی کا مطلب کہ علی المکتبی، علی المکتبی مطلب پر. اوکے. آن یا اپون. من، ویری گڈ. من کا مطلب ہے سے. اوکے چلیے نیکسٹ اسما کی پہچان کریں. آپ کو اسم المعرفہ اور اسما اشارہ پہچانا تھا. اوکے. اسم المعرفہ کون سا ہے؟ خالدن کس میں آتا ہے؟ اسم المعرفہ میں آتا یا اشارہ میں آتا ہے؟ اسم اشارہ میں آتا. کس میں آتا؟ خالدن معرفہ. ویری گڈ. یعنی کہ پراپر ناؤن ہے. ہذا اسم اشارہ ہے. تلکا کس میں آتا؟ اشارہ میں. ویری گڈ. اچھا تلکا میل کے لیے یوز ہوتا ہے یا فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے؟ فیمیل کے لیے. ویری گڈ. زینب کیا ہے؟ اسم الاشارہ ہے یا اسم المعرفہ ہے؟ اسم المعرفہ. ویری گڈ. پاکستانو معرفہ. هذه صرف دو لوگ کی رپلائی کر رہے گرلس، باقی کے سب بزی ہے شاید. ابھی نفیس خاطب کا میسج آیا. اوکے چلیے. هذه اسم الاشارہ ہے. بشرا، بشرا کیا ہے؟ معرفہ ہے. ویری گڈ. اب یہاں پر اسماء معرفہ نکیرہ پہچانا تھا. اوکے. احمد، احمد کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ ایم یا این لکھیے، ٹائپ کریے. اوکے ایزی. ایم. اوکے ویری گڈ. معرفہ. البحر، البحر سی. تو کیا ہے یہ؟ معرفہ. الف لام لگا ہوا ہے. اوکے. عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے یہ عیسیٰ. تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ. ویری گڈ. القرآن، القرآن معرفہ. محمد معرفہ. ایم. ویری گڈ. واجب، اب تنوین یہاں پر دکھیے آپ کو واجب پہ، تو یہ کیا ہے؟ نکیرہ ہے. الورق، الورق معرفہ ہے. الف لام لگا ہوا ہے اس لیے. مریض، مریض نکیرہ ہے. اوکے. بیتن، بیتن بھی کیا ہے؟ نکیرہ ہے. الشمس سین کے اوپر ضمہ ہے اور الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم المعرفہ. اللہم بارک. اب یہاں پر آپ کو انڈر لائن دیے گئے ہوئے ناؤنس میں سے مضاف اور مضاف الیہ پہچانیے تھا.
अस्हाबुल फीली। अब फीली डाक करा हुआ है तो ये क्या है, मुदाफ है या मुदाफ इलैह? फीली क्या है? अस्हाबुल फीली, कंपेनियंस ऑफ द एलिफेंट, तो मुदाफ इलैह है, एम आई लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ओके। अब्दुल्लाहि, अब्द हाईलाइट करा हुआ है तो ये क्या है, बोल्ड लेटर में अब्दु, अब्दु क्या है, मुदाफ। लैलतुल क़द्री, ये क्या है, लैलतु, लैलतुल क्या है, मुदाफ है। ओके। क़लमु मन, मन क्या है, मुदाफ इलैह। ओके, तो हम जब देखें कि मुदाफ और मुदाफ इलैह में मन आ सकता, हुज पेन, ये होगा इसका मीनिंग। ओके। अब वहां पर आपको कोई कसरा नहीं दिख रही तो नहीं बोलना कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह नहीं है, लेकिन ये मुदाफ है। क्यों? क्योंकि मन इज मबनी, फिक्स्ड है, वो ऐसा कसरा नहीं लेता, मन ही नहीं हो सकता, मन मन ही रहता। ओके। नेक्स्ट, हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिसी क्या है, मुदाफ इलैह। इमामु मस्जिदिन, इमामु क्या है, इमामु इस मुदाफ। मस्जिदुर रसूली, मस्जिदुर रसूली मुदाफ इलैह। किताबु तालिबी, किताबु क्या है, किताबु इस मुदाफ। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। तो ये भी इस तरह से करना था। अंडरलाइन वर्ड में हमजतुल वसल और लफ्जुल क़तई पहचानिए। ओके, फर्स्ट था मिन आइना अंत, आइना है वहां पर लिखा हुआ, आइना का अलिफ जो है हमजतुल क्या है, वसल है या क़तई है, क़तई है, क्यों लिखिए, वेरी गुड। हुआ इब्नु, इब्नु का क्या है, इब्नु का अलिफ क्या है, हुआ इब्नुल मुदर्रिसी, इब्नु का अलिफ क्या है, नहीं पता ही नहीं है इब्नु का अलिफ। इब्नु और इसम, इसमुन, इसमुन और इब्नुन के दो अलिफ ऐसे है जो कि हमतुल वसल है, अपन ये पढ़े थे। ओके, इब्नु वसल है। अल्लमल कुरआन, अलिफ लाम का, अलिफ लाम के, अलिफ लाम किस पे भी लगे हुआ, ये अलिफ जो है क्या होता है, हमतुल वसल रहता, तो हमतुल वसल है वो। अल्ला तत गौ, अल्लाह, अल्लाह क्या है, अल्लाह कतई है, वेरी गुड। अब यहाँ पर वला तुखसिरुल मीज़ान, अल मीज़ान का अलिफ लाम क्या, अलिफ, अलिफ क्या है, वसल है या कतई है, वसल है। ओके, ये चीज याद रखिए, यूनिवर्सली कोई भी अलिफ लाम हो वो अलिफ हमजतुल वसल है। ओके, इट कैन बी ड्रॉप्ड समवेयर, और ये लिखा जाता लेकिन पढ़ा नहीं जाता अगर इससे पहले कोई हर्फ आ गया तो। और इब्नुन और इस्मुन, ये चीज याद रखिए। ओके, चलिए हो गया ये हमारा फॉर्म, और इंशाअल्लाह हम देखते हैं हमारी जो लास्ट टाइम जो है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेट्स स्टार्ट विद दिस बिट अगेन, फोर्थ बिट जो आपको रीड करनी थी। ओके। अब अच्छा, होमवर्क से रिलेटेड मुझे एक चीज बोलनी थी, जो कन्वर्जेशन दिए थे लिखने के लिए, उसमें यहाँ पर यह आया वअलल वअला मक्तबिल मुदर्रिसी, इट इज ऑन द डेस्क ऑफ द टीचर। तो जब आप आला, आला मक्तबिल मुदर्रिसी को, इसको मुदाफ और इसको मुदाफ इलैह नहीं बताना। ओके, इसको हर्फ जर बताना जरूर, इसम मजरूर बताना जरूरी है। ओके, अगर आप इसको मुदाफ इलैह बताए तो वो ऑटोमेटिकली मक्तबी मुदाफ बन जाता है। ओके, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कोई भी इसम में सपोज फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर आया हुआ अला मक्तबी, तो अला क्या है, हर्फ जर है, हमको मालूम है, बहुत सारे जने क्या करें, हर्फ जर है। ओके, उसके बाद वाले को मुदाफ और इसको, ये मक्तबी को मुदाफ और इसको मुदाफ इलैह बनाए, ये सही चीज है, बनाए, लेकिन जब आप लोग आगे जाके नहव के अराब करेंगे तो आपको पता चलना जरूरी ये चीज है कि जब ये भी हर्फ जर आए तो उसके बाद वाले इसम को आपको बताना चाहिए कि वो इसम मजरूर है। कौन सा इसम है, इसम मजरूर है। ओके,
अब आप अलमुदर्रिसी को बताएंगे कि वो मुदाफ इलैहि है। जब आप अलमुदर्रिसी को बता दिए वो मुदाफ इलैहि है, तो उसके बाद उससे पहले वाला लेटर ऑटोमेटिकली उससे पहले वाला वर्ड ऑटोमेटिकली मुदाफ हो जाता। ठीक है, मेरे को जरूरी वहां पर बताना क्या चीज है, कि वो इसम मजरूर है बताना है। ओके, अगर आप इसम मजरूर, क्यों बोलूं मैं ऐसा इसम मजरूर है बताना बोल के जरूरी है, क्योंकि आपको ये मकतबी के नीचे जो कसरा आई, वो क्यों आई, उसका रीजन तो होना चाहिए ना। वो क्यों आई, वो क्यों आई गर्ल्स, मकतबी के नीचे कसरा क्यों आई? अला की वजह से, वेरी गुड। हर्फ जर अला की वजह से, तो हर्फ जर अला है, इसके वास्ते ये इसम मजरूर हुआ। इसको इस तरह से लिखना, और उसके बाद ये इसम को आप बताना कि ये मुदाफ इलैहि है। जब ये इसम को आप मुदाफ इलैहि बताए, कभी भी आप कोई भी मुदाफ इलैहि में मुदाफ इलैहि बता दिए, तो उससे पहला वाला लेटर, उससे पहले वाला वर्ड ऑटोमेटिकली मुदाफ हो जाता। मुदाफ के बगैर तो मुदाफ इलैहि आ नहीं सकता। ओके, ये आगे की चीज है। और एक मिस्टेक क्या हुई, लोग जो ये था ना, हुआ अलल मकतबी हुनाका को मुदाफ मुदाफ इलैहि बोल दिए। ये किस तरह से मुदाफ मुदाफ इलैहि हुआ? अल मकतबी हुनाका कैसा मुदाफ मुदाफ इलैहि हुआ? अल मकतबी पे अलिफ लाम जाहिर तौर पर लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा है वहां पर अलिफ लाम है। और आप पढ़े थे कि मुदाफ कैन नेवर एक्सेप्ट अलिफ लाम। कुछ भी कायदा अरबी का इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता, और ना ही इस पर तनवीन आ सकती। तो अब यहाँ पर अल मकतबी भी आपको जाहिरी तौर पर अलिफ लाम दिख रहा, तो ये किस तरह से मुदाफ हुआ? ये रॉन्ग है। ओके, इसके एराब किस तरह से होंगे? सही एराब यहाँ पर ये अला हर्फ जर है, अल किताबी इसम मजरूर है, हुना का इस जर्फ। अब ये जर्फ क्या है, हम थोड़ा खाली सिर्फ एडवर्ब है देख लिए। और ये जर्फ भी आज, और एक पॉइंट बोल रही हूँ, कल कल एक पॉइंट बोली थी कि जर्फ का मतलब एडवर्ब होता। आज एक पॉइंट क्या बोल रही हूँ मैं, कि जर्फ जो है एज अ फॉर्म ऑफ मुदाफ मुदाफ इलैहि आते, जैसा कि यहाँ पर है, देखिए, हिया तहता, तहता भी एक जर्फ है। इसके बाद वाला, जर्फ के बाद वाला वर्ड हमेशा मुदाफ इलैहि होता। ओके, मैं क्या पॉइंट बोली, जर्फ के बाद वाला वर्ड हमेशा मुदाफ इलैहि होता। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल तहतल मकतबी, ओके, अंडर द डेस्क, ये तहता क्या है, जर्फ है। ओके, अल मकतबी के नीचे कसरा क्यों आई? क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बना। ओके, तो जो जब भी जर्फ आता, उसके बाद वाला नेक्स्ट लेटर उसका मुदाफ इलैहि होता। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जो मैं अब बोली। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। बस ये चीज याद रखिए कि जर्फ के बाद अगर कोई वर्ड आया तो इट विल बी मुदाफ इलैहि। ओके, और वो मजरूर रहता है। ठीक है, तो हम अब तक जो पढ़े, वो पढ़े इसम के, कोई भी इसम के मजरूर होने के दो रीजंस पढ़ लिए। एक रीजन क्या पढ़े, हर्फ जर। ओके, फर्स्ट रीजन क्या था, हर्फ जर पर जो पढ़े थे। हर्फ जर आया तो उसके बाद वाला जो है इसम मजरूर हो जाता, जैसे कि आला अल मकतबी हो गया। ओके, आला मिन इला जो भी हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा रीजन क्या पढ़े हम, सेकंड रीजन, कि मुदाफ इलैहि, मुदाफ और मुदाफ इलैहि, मुदाफ अगर है तो मुदाफ इलैहि उसके बाद वाला इसम मजरूर हो जाता। और मुदाफ मुदाफ इलैहि के कॉन्सेप्ट में क्या है, और एक जर्फ, जर्फ थोड़े एडवर्ब्स ऐसे है, जर्फुल ज़मान और जर्फुल मकान है, वो आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा दिमाग में ऐसा रहना आप लोग को बोल के मैं बोलते जाती हूँ, थोड़े थोड़े पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट। तो जो जर्फ है उसके बाद अगर कोई भी इसम आया तो वो इसम मजरूर रहता, और वो इसम मुदाफ इलैहि रहता। ये चीज आपको याद रखना है जर्फ से रिलेटेड। ओके, तो होमवर्क में ये चीज बहुत बड़ी मिस्टेक हुई सबसे, ये मकतबी को मुदाफ और इसको जो है क्या करे, मुदाफ इलैहि बताए। हालांकि आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो सही है, लेकिन आला आया तो उसके बाद वाला इसम मजरूर है बताना वो जरूरी है। क्यों हम ऐसा करते बताते, क्योंकि ये कसरा आई, क्यों आई कसरा पे, मकतबी के ऊपर कसरा क्यों लगी, इसीलिए हमको वो बताते हम कि आला हर्फ जर है, मकतबी इसम मजरूर है, वो मजरूर हुआ आला की वजह से। और फिर जो है अल मुदर्रिसी को आप बोलेंगे कि ये मुदाफ इलैहि है,
جب آپ المدرسی کو مضاف الیہ بولے تو آٹومیٹکلی مکتبی مضاف ہو جاتا. اوکے انشاءاللہ جیسا آپ آگے جائیں گے اور جو ہے یہ کلیئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اوکے چلیے یہاں سے ہم کریں گے شروعات ہماری یہ بیٹ سے. اوکے آئینہ بیت المدرسی ہوا بعید. آئینہ where is the house of the بیت المدرسی. اوکے house of the teacher it is far. اب far کا اپوزٹ کیا ہے؟ فار کا اپوزٹ کیا ہے؟ بعید کا اپوزٹ کیا ہے؟ قریب. ویری گڈ قریب. اوکے بعید اور اس کا اپوزٹ ہے قریب. ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ. القرآن کتاب اللہ. کتاب اللہ یہاں پر مضاف مضاف الیہ ہے. اوکے کتاب اللہ اس لیے کتاب کے اوپر نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے اور اللہ کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ بک آف اللہ سبحانہ و تعالی. The Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Next sentence. Al-Ka'batu Baytullahi. Al-Ka'bah, the Kaaba is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Baytullahi. Okay. تو Baytullahi مضاف مضاف الیہ ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. تو رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. اوکے نا اب یہ سینٹنس یہاں پر تک جو تھے پورے اسم سے سٹارٹ ہو رہے تھے یہ پورے جملۃ الاسمیہ تھے. اس میں ہم مبتدا اور خبر دیکھتے لیکن جملۃ الفعلیہ کے پارٹس الگ الگ ہوتے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے میں. لیکن بس آپ کو اب یہاں پر ففتھ سینٹنس کے اکارڈنگ کیا دیکھنا ہے کہ خرج ایک فعل ہے. the sentence is starting with a fail. تو مطلب کیا ہوا یہ ایک وربل سینٹنس ہوا. اوکے یہ جملۃ الفعلیہ ہے. ٹھیک ہے اس کے پارٹس الگ ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے وہ آگے کے چیپٹرز میں. اوکے تو خرج المدرس من غرفت المدیری. اب یہاں پر اس کا میننگ کیا ہوگا؟ the teacher left from room of the head teacher. ٹیچر نکلے کہاں سے نکلے انہوں؟ کمرے سے. کس کے؟ ہیڈ ٹیچر کے کمرے سے نکلے ٹیچر. اوکے تو یہاں پر دیکھیے اب مجھے اس کے اعراب کرنا ہے تو میں کس طرح سے کروں گی؟ یہاں سے دیکھیں گے ہم من سے. غرفت المدیری تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا مضاف اور مضاف الیہ. تو میں جب اس کے اعراب کروں گی تو میں بولوں گی من از حرف جر. اوکے غرفتی اسم مجرور. یہ اسم مجرور ہوا. کیوں مجرور ہوا؟ کیونکہ علی حرف جر کی وجہ سے. المدیری کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اوکے المدیری کیا ہے؟ مضاف الیہ. جب آپ المدیری کو مضاف الیہ بتائے تو غرفتی آٹومیٹکلی مضاف ہو جاتا. لیکن یہاں پر آپ کو غرفتی کو اسم مجرور ہے بتانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ من کی وجہ سے کیا چینج آیا؟ غرفتی کے نیچے کسرہ آ گئی. اوکے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے تو اس پوائنٹ کو یاد رکھیے. اوکے الحمدللہ. نیکسٹ هذا بیت حامد. یہ جو ہے ہادہ اسم الاشارہ قریب ہے. ذالک اسم الاشارہ دور ہے اور یہ مذکر کے واسطے استعمال ہوتا. اوکے تو ہادہ یہ بیت حامد حامد کا گھر ہے. اور ذالک بیت خالد یہ وہ خالد کا گھر ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر بیت حامد مضاف مضاف الیہ ہے. بیت خالد بھی مضاف مضاف الیہ ہے. اوکے ابن عمار ابن عمار طالب. یہاں پر غلط دیا ہوا ہے عمار آنا اور طالب آنا کیونکہ وہ خبر ہے. ٹھیک ہے ابن عمار son of عمار is a student. ٹھیک ہے عمار کا بیٹا ایک اسٹوڈنٹ ہے. وابن یاسر تاجر. اور یاسر کا بیٹا ٹریڈر ہے بزنس مین ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر ابن عمار مضاف مضاف الیہ ہے. وابن یاسر وابن نہیں بولنا ابن یاسر مضاف مضاف الیہ. واو تو واو آتا الگ چیز میں آتا حرف میں آتا وہ پھر. تو ابن عمار ابن یاسر مضاف اور مضاف الیہ ہے. اوکے اب یہاں پر آپ لوگ نوٹ کریے جب میں بول رہی ہوں شروعات میں ابن عمار بولوں میں
इब्नु, ये अलिफ को मैं पढ़ रही हूँ। मैं ये अलिफ को क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि ये शुरुआत ऑफ द जुमले में आया है, इसीलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। ये हमजतुल वसल है। हमजतुल वसल के बारे में हम पढ़े थे कि जब ये अलिफ अगर शुरुआत ऑफ द सेंटेंस में आए तो वो पढ़ा जाता। ओके, अगर वो बीच में इससे पहले कोई और वर्ड आ गया तो उससे वो मिलाया जाता। बाज वक्त उसको लिखा जाता, बाज वक्त उसको लिखा भी नहीं जाता, जैसा कि हम बिस्मिल्लाह में देखे थे। ओके, इस तरह से। तो जब मैं पढ़ रही हूँ शुरुआत, इब्नु अम्मारिन तौलिबुन वब्नु, जब मैं वाव के साथ इब्नु को मिला रही हूँ तो मैं ये अलिफ को नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये अलिफ हमजतुल वसल है, वहां पर खाली लिखा हुआ है बट इट इज नॉट रेड, क्योंकि वाव से हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। वब्नु यासिरिन ताजिरुन। ओके, तो यासिर के बेटे क्या है? ताजिर है। ओके ना, तो यहाँ पर हम देखें इब्नु अम्मारिन और इब्नु यासिरिन दो मुदाफ मुदाफ इलैह। नेक्स्ट सेंटेंस, बैतुल मुदर्रिसी, हाउस ऑफ द टीचर। हाउस ऑफ द टीचर बाइदुन, ओके, दूर है। हाउस ऑफ द टीचर इज दूर, इज फार। व बैतुत ताजिरी करीबुन, और ताजिर का घर जो है करीब है। ओके, तो यहाँ पर बैतुल मुदर्रिसी मुदाफ मुदाफ इलैह, बैतुत ताजिरी मुदाफ मुदाफ इलैह। ठीक है, बाइदुन और करीबुन अपोजिट है एक दूसरे के। ओके, चलिए नेक्स्ट है हादा मिफ्ताहु सय्यारती। ओके, हादा दिस, मिफ्ताहु सय्यारती इस मुदाफ और मुदाफ इलैह, कार की चाबी, ये कार की चाबी है। आइना मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी किधर है बोल के पूछ रहे हैं, घर की चाबी किधर है? ये कार की चाबी है। मिफ्ताहु सय्यारती मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ, और मिफ्ताहुल बैती भी मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ। घर की चाबी किधर है बोल के पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, मन अंत या वलदू। अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ जब, तो मैं या वलदू पढ़ूंगी या वलदुन पढ़ूंगी? मैं किस तरह से पढ़ूंगी? या वलदू पढ़ूंगी या मैं या वलदुन पढ़ूंगी? या वलदू, वेरी गुड। क्यों मैं या वलदू पढ़ूंगी? क्योंकि या हर्फ निदा है, उसके बाद वाला आने वाला, वेरी गुड, उसके बाद वाले वाला इसम सिंगल पेश होता है हमेशा उसकी एंडिंग पे। ओके, तो इसीलिए मैं या वलदू पढ़ूंगी। मन अंता या वलदू, मन हु, अंता यू, हु आर यू, या वलदू कौन है आप, कौन हो तुम, ए लड़के, ए लड़के कौन हो तुम पूछते ना, इस तरह से ही। अना बनु अब्बासिन, आई एम द सन ऑफ अब्बास। अना बनु अब्बासिन, तो इब्नु अब्बासिन मुदाफ मुदाफ इलैह है। और ये बार बार चीज रिपीट हो रही, देखिए इब्न का अलिफ हमजतुल वसल है, इसीलिए अना बनु, उससे पहले अना है, अना बनु अब्बासिन। ये चीज बोलने की क्यों जरूरत है इस तरह से बार बार? क्योंकि कुरान में हमजतुल वसल बहुत है। आप आगे जाके जब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, फेल, फेल के बाद ऑर्डर आता, ऑर्डर सारे पूरे ऑर्डर्स, कमांडिंग वर्ब्स जो रहते ना, वर्ब्स आता, उसके बाद जो है कमांडिंग वर्ब्स आते, तो ये पूरे जो है मतलब वसल से बने हुए रहते। इसके ऊपर कभी भी आप अगर उस्मानी मुसहफ देखें तो कभी भी हरका लगा हुआ नहीं रहता। ओके, हमको लगाना रहता। तो इसीलिए जरूरी चीज ये है आप लोगों को समझ में आना कि हुज़ुल वसल कौन सा है और कतई कौन सा है। आसान है, बहुत ही ज्यादा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बार बार हम रिवाइज कर रहे, और उससे भी इंशाअल्लाह रिवीजन से भी और पक्का होते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर हम देखें इब्नु मन, हु सन इज मुदाफ मुदाफ इलैह, और इब्नु खालिदिन इज मुदाफ मुदाफ इलैह। अब आप जब इब्नु खालिदिन बोले तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाता क्योंकि खालिदिन के नीचे कसरा दिख रही, लेकिन इब्नु मन को किस तरह से है? जैसा हम कलम मन पढ़े थे ना, कलम मन, हुज पेन मुदाफ मुदाफ इलैह, सेम इब्नु मन मुदाफ मुदाफ इलैह, उसी तरह हुज लड़का, किसका बेटा। ओके, हुज सन। चलिए 11th सेंटेंस,
वबनु, अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ी हूँ, वबनु अलिफ हमज़तुल वसल है, फिर से वबनु वन मन हुआ, एंड whose son is he, मन हुआ, whose son is he, हुआ ibnu खालिदिन, हुआ ibnu खालिदिन, he is the son of खालिद। तो यहाँ पर फिर से आया वबनु मन मुदाफ मुदाफ इलैहि है, और इब्नु खालिदिन भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से बोलेंगे हम उर्दू में, किसका और वो किसका बेटा है। ओके, तो जवाब क्या मिला कि वो खालिद का बेटा है, हुआ इब्नु खालिदिन। ठीक है, ओके, आप लोग को यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना सबको। ओके, 11th वन देखिए, हम जब वाव के साथ मिला के पढ़े तो अलिफ को नहीं पढ़ते, क्योंकि इब्न का अलिफ इसम है, इब्न का अलिफ हमज़तुल वसल है। ओके, तो वब्नु मन, वब्नु मन, ओके, हुआ, एंड हुज सन इज ही, और वो किसका बेटा है। ओके, वो किसका बेटा है। अब यहाँ पर इब्नु मन जो है मुदाफ मुदाफ इलैहि है। किस तरह से मुदाफ मुदाफ इलैहि हुआ, जैसा कि हम कलमु मन पढ़े थे, हुज पेन, किसका पेन। ओके, वैसे उसी तरह से किसका लड़का, कौन है वो, किसका, वो किसका बेटा है। ठीक है, किसका बेटा यहाँ पर हुआ मुदाफ मुदाफ इलैहि। अब जवाब मिला हुआ इब्नु खालिदिन, ही इज द सन ऑफ खालिद। ठीक है, वो खालिद का लड़का है, तो इब्नु खालिदिन इज मुदाफ मुदाफ इलैहि हियर। ठीक है, मन मुदाफ हो सकता है, जी हाँ। चलिए, नाउ सेंटेंस नंबर 12, أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المدينة। ओके, यहाँ पर अब क्या सवाल पूछा गया, आईना कहाँ है, मस्जिदु, मस्जिद, मस्जिद, इसको इंग्लिश में इस तरह से करिए, मस्जिद ऑफ रसूली, मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। ओके, कहाँ है, आईना को आप ट्रांसलेट कर लिए, आईना का मतलब हुआ कहाँ है, मस्जिदु मस्जिद, मॉस्क ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिए, ऐसा बहुत बार कुरान में आता, इसको बोलते हैं कंपाउंड मुदाफ और मुदाफिले। ओके, एक से ज्यादा आपको मुदाफ और मुदाफिले दिख रहे हैं यहाँ पर। कैसा बोल रही हूँ मैं, एक से ज्यादा दिख रहे, मस्जिदु रसूली, मस्जिद ऑफ रसूल। ओके, मस्जिद ऑफ रसूल, रसूल की मस्जिद। ठीक है, ये एक मुदाफ मुदाफिले हुआ। ओके, फिर दूसरे कलर में रसूलिल्लाही, दूसरा मुदाफ मुदाफ इलैहि हुआ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह के रसूल। ठीक है, तो ये इस तरह से आ सकता, कुरान में बहुत बार आता, इसको बोलते हैं कंपाउंड मुदाफ मुदाफ इलैहि। और अब इसका तर्जुमा किस तरह से करते हैं, यूं चलाते इसका तर्जुमा इधर से, अल्लाह के रसूल की मस्जिद। ओके, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, उर्दू में इस तरह से होता है उसको। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि खाली एक बार इस मुदाफ मुदाफिले आना, बल्कि मुदाफ मुदाफिले कंटिन्यूसली बहुत बार भी आ सकते। ठीक है, अब इसका मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ आसानी से समझने के लिए। अब मैं बोली कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की, तो मैं किस तरह से बोलूंगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की। किस तरह से बोलूंगी मैं गर्ल्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की। एनीवन ट्राई, ट्राई करिए। लड़की के लिए क्या आता, लड़की के लिए क्या आता, वलद लड़का हुआ, लड़की के लिए बिंतु आता। वेरी गुड, बिंतु रसूलिल्लाह, वेरी गुड, बिंतु रसूली, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। तो अब अगर मैं बोली कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की हुआ बिंतु, बिंतु रसूली, बिंतु रसूलिन। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की।
ٹھیک ہے. اب اگر میرے کو بولنا ہے کہ اللہ کے رسول کی لڑکی، اللہ کے رسول کی لڑکی، تو میں یہاں پر کیسا بولوں گی؟ بنت رسول اللہ. اوکے. اب یہاں پر جو رسولن تھا وہ ہٹا دینا. کیوں ہٹا دینا؟ کیونکہ بنت رسول مضاف مضاف الیہ ہوا، پھر رسول اللہ، پھر مضاف مضاف الیہ ہوا. تو یہ رسولن کے نیچے کسرہ نہیں آ سکتی. کیوں کسرہ نہیں آ سکتی؟ کیونکہ یہ مضاف بنا، تو آپ یہاں پر لگائیں گے رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو بنت ہوا مضاف، رسولی ہوا مضاف الیہ، پھر رسولی ہوا مضاف، اور اللہ ہی ہوا مضاف الیہ. اوکے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو یہاں پر دو مضاف مضاف الیہ آئے. یہاں تک کلیئر ہے گرلس؟ یس اور نو؟ یس. ٹھیک ہے. اوکے. الحمدللہ. اب میں بول رہی ہوں فاطمہ رضی اللہ عنہا از دا ڈاٹر آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. تو میں کس طرح سے بولوں گی؟ فاطمہ تو دوسرے کلر سے لکھیں گے، فاطمہ تو بنت رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے کیا ہوا؟ اس کو یہاں سے کرنا ترجمہ. کیسا کرنا؟ اللہ کے رسول کی لڑکی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. اوکے. تو یہاں پر دیکھیے کتنے مضاف مضاف الیہ بنے؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. تو اس طرح سے کمپاؤنڈ مضاف مضاف الیہ آ سکتا. ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ کو قرآن میں بہت ملتے مضاف مضاف الیہ کا چیپٹر بار بار ریوائز کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہر دوسری ہر تیسری آیت میں آپ کو مضاف مضاف الیہ ملتا، لازماً ملتا. بہت کامن ہے قرآن میں مضاف اور مضاف الیہ. تو یہ کانسیپٹ آپ کے پاس ضروری ہے کلیئر ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم جس طرح سے دیکھیں اسی طرح سے یہاں پر بھی مضاف کمپاؤنڈ مضاف مضاف الیہ آ رہا. مسجد رسولی مضاف مضاف الیہ ہے، پھر رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. اللہ کا رسول، رسول کی مسجد. اوکے. اللہ کے رسول کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ تو جواب دے رہے ہوا فی المدینتی. اب یہاں پر فی اور کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ مدینتی کیا ہے؟ فی کیا ہے اور مدینتی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، مدینتی اسم مجرور ہے. ویری گڈ. اللہم بارک. اوکے. تو ہوا فی المدینۃ المنورتی. اوکے. کہاں ہے وہ؟ مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے. اب المنورتی، المنورتی کیوں ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اوکے. اب کیا میں المدینۃ المنورتی کو مضاف مضاف الیہ بول سکتی ہوں؟ امپورٹنٹ سوال ہے یہ، دھیان سے سنیے گا. المدینۃ المنورتی کو میں مضاف اور مضاف الیہ بول سکتی ہوں؟ یس اور نو؟ نو. کوئی ہے جو یس بول رہے؟ المدینۃ المنورتی. اب منورتی کے نیچے تو کسرہ آیا، لیکن اس سے پہلے تو حرف جر نہیں ہے. کیوں نہیں بول سکتی ہوں میں؟ کیوں نہیں بول سکتی میں المدینۃ المنوری؟ الف لام نہیں آتا. ویری گڈ. اللہم بارک. نو الف لام. اللہم بارک گرلس. یہاں پر آپ لوگ کلیئرلی الف لام دکھ رہا المدینتی پہ، تو مطلب المدینۃ المنورتی مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے. اوکے. چلیے الحمدللہ رب العالمین. اوکے. سینٹینس نمبر 13. بنت حامد فی المدرسة وبنت محمد فی الجامعة. بنت حامد مضاف مضاف الیہ ہے، حامد کی لڑکی مدرسے میں ہے. وہ اور بنت محمد، محمد کی لڑکی فی الجامعة یونیورسٹی میں ہے.
ठीक है। तो यहाँ पर बिन्तु हामिदिन मुदाफ मुदाफ इलैह, बिन्तु मुहम्मदिन मुदाफ मुदाफ इलैह। ओके, नेक्स्ट इस्मुल मुदर्रिसी। अब मैं शुरू में इसम का अलिफ आया, अब ये हमज़तुल वसल है हालांकि, लेकिन मैं शुरू सेंटेंस में आया इससे मैं पढ़ रही हूँ उसको। इस्मुल मुदर्रिसी सईदुन। ओके, टीचर का नाम सईद है। वस्मुल मुहंदिसी खालिदुन, और इंजीनियर का नाम खालिद है। ओके, तो ये किस तरह से है, इस्मुल मुदर्रिसी मुदाफ मुदाफ इलैह है, फिर यहाँ का भी इस्मुल मुहंदिसी मुदाफ मुदाफ इलैह है। नेम ऑफ द टीचर, नेम ऑफ द इंजीनियर, इंजीनियर का नाम, टीचर का नाम, टीचर का नाम सईद है और टीचर का नाम खालिद है, सॉरी, और इंजीनियर का नाम खालिद है। ओके, तो ये हो गया मुदाफ मुदाफ इलैह। अब यहाँ पर आप लोग को न्यू टर्म्स आ रहे हैं दो, एक है अम्मुन, एक है खालुन। ओके, खौला, खौला तो अपन बोलते रहते, खौला अपन उर्दू में बोलते, खौला को अपने जो आंटी है उनको बोलते, लेकिन यहाँ पर खौला मेल को बोलते, अंकल जो आ, मम्मी के साइड वाले रहते ना उन लोगों को खौला बोलते। और अम्मुन बोलते हैं आपके चचा को, जो आपके डैडी के भाइयों को बोलते हैं चचा को। ठीक है, तो दो वर्ड याद रखिए, अम्मुन ये रिपीट होते हैं बार बार बुक में। अम्मुन इज द पैटर्नल अंकल, जो आपके डैडी के साइड के भाया हैं, डैडी के जो भाया हैं उनको आप बोलेंगे अम्मुन अरबिक में। और खौलुन किसको बोलेंगे आप, जो आपके मम्मी के भाया हैं, यानी कि आपके मामा वगैरह जो होते हैं ना वो आपके, आप बोलेंगे उन लोगों को खौलुन। ठीक है, खौलुन। ओके, तो सेंटेंस नंबर 15 इज अम्मु तालिबी गनियुन, पेटर्नल अंकल यानी कि चाचा ऑफ द स्टूडेंट इज गनी, रिच। इसको उर्दू में किस तरह से बोलेंगे, तालिब इल्म के चाचा अमीर है। ठीक है, तो यहाँ पर अम्मु तालिबी मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ, तालिब इल्म के चाचा अमीर है। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस है बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, द डोर ऑफ द मस्जिद इज ओपन एंड व बाबुल मदरसती मुगलकुन, अपोजिट है। मफ्तूहुन का अपोजिट मुगलकुन है, मफ्तूहुन ओपन, मुगलकुन क्लोज। ओके, डोर ऑफ द मस्जिद इज ओपन एंड द डोर ऑफ द स्कूल इज क्लोज्ड। ठीक है, मस्जिद का दरवाजा खुला है और स्कूल का दरवाजा बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबुल मस्जिद ही मुदाफ मुदाफ इलैह आ रहा, बाबुल मदरसती मुदाफ मुदाफ इलैह आ रहा, दो आ रहे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17 कौलु हामिदिन। ओके, कौलुन किसको बोलते हैं, आपके मम्मी के जो भाई हैं उन लोग को बोलते हैं अंकल। ओके, अंकल है, ये मैटरनल अंकल है ऑफ हामिद इज पुअर, अनक्लोज नहीं है, अंकल। तो कौलु हामिदिन मुदाफ मुदाफ इलैह, हामिद के मामा फकीरुन, फकीर है। ओके, पुअर है मतलब बोलना चाह रहे। नेक्स्ट सैयारतु अब्बासिन, सैयारतु अब्बासिन, कार ऑफ अब्बास, अब्बास की गाड़ी, फिशारिअ इज इन द स्ट्रीट, कहाँ है वो, रोड पर है। ओके, सैयारतु अब्बासिन फिशारिअ, कार ऑफ अब्बास, कार इज इन द स्ट्रीट, या कार ऑफ अब्बास इज इन द स्ट्रीट, अब्बास की गाड़ी कहाँ पर है, रोड पर रखी हुई है। तो सैयारतु अब्बासिन मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। Sentence number 19. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Ibnu man whose son anta are you. आप किसके लड़के हैं। ओके, तो इब्नु मन मुदाफ मुदाफ इलैह है, अंता यू। ठीक है, अना इब्नु, अना इब्नुल मुदर्रिसी, अना आई एम इब्नुल मुदर्रिसी, आई एम द सन ऑफ द टीचर, आई एम टीचर्स सन, मतलब मैं जो है टीचर का लड़का हूँ। ठीक है, यहाँ पर इब्नुल मुदर्रिसी मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 20 ऐनल किताबु, वेयर इज द बुक।
हुआ तहत सैयारा, क्या मैं क्या लगाऊंगी इसको, सैयारा तू बोलूंगी, सैयारती बोलूंगी, क्या बोलूंगी इसको? क्या बोलूंगी मैं इसको? सैयारती, क्यों सैयारती बोलूंगी मैं? एडवर्ब, तहता इज एडवर्ब, ज़र्फ है, वेरी गुड। उसके बाद वाला आने वाला इसम क्या होता? मुदाफ, मुदाफ इलैहि होता। ओके, ये हम पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तहता की वजह से सैयारती जो है क्या हो गया? मजरूर हुआ और मुदाफ इलैहि हो गया वो। तो हुआ तहत सैयारती, मुदाफ मुदाफ इलैहि, ज़र्फ एंड मुदाफ इलैहि। ओके, अब यहाँ पर आपको ये तहता को ज़र्फ बताना जरूरी है, क्योंकि तहता ओरिजिनली ज़र्फ है। अब अस्सयारती को आप क्या बोलेंगे? मुदाफ इलैहि बोलेंगे। जब आप अस्सयारती को मुदाफ इलैहि बोले तो तहता ऑटोमेटिकली मुदाफ हो गया। ओके, लेकिन तहता को जब 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 आप मैं बोलिए आपको इसका मुदाफ मुदाफ इलैहि, तो तहता को मुदाफ और इसको मुदाफ इलैहि नहीं लिखना, तहता को लिखना ज़र्फ, अस्सयारती को लिखना मुदाफ इलैहि। ओके, चलिए, नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो इसको हम करेंगे, चलिए बोलते जाइए चैट बॉक्स में। डैश अल बैती मुगलकुन, डैश, क्या आ सकता है यहाँ पर? बाबल बैती, बाबल आएगा, बाबुल आएगा, बाबिल आएगा, किस तरह से आएगा? बाबुल बैती मुगलकुन, बाबुल, वेरी गुड। तो घर का दरवाजा बंद है बोल रहे हैं आप लोग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आईना डैश सैयारती, वेयर डैश सैयारती, कहाँ है डैश सैयारती? मिफ्ताहु सैयारती, वेरी गुड। कहाँ है कार की चाबी? वेरी गुड। मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूली डैश, ये तो अपन सबको आता, रसूलिल्लाही। ओके, अल्लाह। अब ये रसूल उनके ऊपर रसूली करूंगी मैं या रसूलू करूंगी, किस तरह से बोलूंगी? रसूलुल्लाही, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। फोर्थ वन, डैश अत्तबीबी बईदुन, डैश अत्तबीबी बईदुन, क्या चीज हो सकती है डॉक्टर की जो दूर हो सकती? बैत, बैतु तबीबी बाइदुन। ओके, वेरी गुड, यानी कि डॉक्टर का घर दूर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन, अल कुरआनु किताबु डैश, किताबुल्लाही, वेरी गुड। खतीजतु डैश हामिदिन, खतीजा क्या है? लड़की है हामिद की, तो किस तरह से बोलेंगे? बिन्तु हामिदिन, वेरी गुड। अना डैश अल मुदर्रिसी, अना, मैं जो है लड़का हूँ, टीचर का लड़का हूँ, किस तरह से बोलेंगे? इब्नुल मुदर्रिस। मैं बोलना चाहूँ मैं टीचर की लड़की हूँ, तो मैं किस तरह से बोलूंगी? है ना, बिन्तुल मुदर्रिसी, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश अत्तालिबी मकसूरुन, स्टूडेंट का कुछ चीज टूटी हुई है। कलमुत्तालिबी मकसूरुन, अल्लाहुम्मा बारिक। कलमुन नहीं लिखना, कलमुत्तालिबी क्या होता? मुदाफ मुदाफ इलैहि होता, इसीलिए कलमुत्तालिबी मकसूरुन। नाइन्थ वन, बाबू डैश मफ्तूहुन, बाबू डैश मफ्तूहुन, बाबुल मस्जिदी, बाबुल मस्जिदू नहीं आता, मस्जिदी, क्योंकि बाबुल मस्जिदी मुदाफ मुदाफ इलैहि बन रहा। ओके, मस्जिद का दरवाजा,
ٹھیک ہے. مفتوحن کھلا ہے. خرج خرج المدرس. اوکے. خرجہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسا سینٹینس ہے جو کہ ورب سینٹینس ہے. خرجہ ورب ہے اسی لیے. المدرس ٹیچر نکلے. من فرام کہاں سے؟ ڈیش ڈیش المدیری. غرفت المدیری. اوکے. تو غرفتو آتا ہے یہاں پر. غرفتی کیوں؟ کیونکہ من کی وجہ سے. خرج المدرس من غرفت المدیری. اوکے. من کی وجہ سے غرفتی ہوا اور المدیری کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اسی لیے مدیری جو ہے مجرور ہوا. آپ لوگ کے بیسک کانسیپٹس جو ہے بلڈ کرے ہوئے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کے بیسک کانسیپٹ نہیں بنے ہوئے رہیں گے تو جیسا کورس آگے آگے بڑھتے رہتا ویسا بہت سارے چیزیں ایک ساتھ آتے ہیں اینڈ دین یو ول گیٹ کنفیوز اور بولتے کہ یہ کیا ہے. اوکے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور لوگ چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑ دیتے سمجھ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ شروعات سے کانسیپٹ بلڈ نہیں کرے، شروعات سے وکیبلری اپنی بلڈ نہیں کرے اور سمجھ نہیں آتا. جب کورس تھوڑا کمپلیکس ہوتا رہتا تو سمجھ نہیں آتا اینڈ پیپل ول ڈراپ اٹ. کیوں کر دیتے ایسا؟ کیونکہ شروع سے محنت نہیں کرے. تو جیسے جیسے نیو ٹرمز آتے رہتے اپنی وکیبلری کو بلڈ کریے. اوکے. اور اس کو سیکھیے اور کانسیپٹس کو اپنے بالکل کلیئر کٹ رکھیے. اوکے. اب تک ہم جو پڑھے تھے اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھے. اب ہم حرف جر کے بارے میں، جار مجرور کا کانسیپٹ بالکل کلیئر کٹ رہنا اور مضاف اور مضاف الیہ کا کانسیپٹ بھی بالکل کلیئر رہنا. کیونکہ بہت، میں آپ کو کیا بول رہی ہوں بار بار یہی چیز کی، قرآن کی ہر دوسری آیت، ہر تیسری آیت میں مضاف اور مضاف الیہ آپ کو مل جاتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اوکے. چلیے. الحمدللہ. اللہم بارک. بہت اچھا کرے آپ لوگ. اب اس کے بعد والا بھی جو ہے نا آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کریکٹ دا فالوئنگ کنسٹرکشن. یہاں پر کچھ مسٹیکس دی ہوئی ہیں، آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے یہ والی بٹ میں. اب اس کو دیکھیے گا. اوکے. انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتی ہوں یہ بٹ کر لینے کے بعد. سینٹینس نمبر 20. اب یہاں پر دیکھیے القلم الطالبی دیا ہوا ہے. تو یہ سینٹینس میں کیا غلطی ہے؟ طالب علم کا پین، تو قلم ہونا چاہیے تھا. ویری گڈ. قلم الطالبی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اوکے. نیکسٹ سینٹینس ہے بنت حامد. یہاں پر کیا غلطی ہے؟ اس والے میں بنت حامد میں کیا غلطی ہے؟ حامدن ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ مضاف الیہ بنا ہوا ہے. تو بنت حامدن. پھر اسم الولد میں کیا غلطی ہے؟ اسم الولدہ میں کیا غلطی ہے؟ ولدی ہونا چاہیے تھا. ویری گڈ. نیم آف دا بوائے، لڑکے کا نام. تو ولدی ہونا چاہیے تھا. یہ حامدن ہونا چاہیے تھا. یہ قلم ہونا چاہیے تھا. الف لام نہیں آ سکتا کیونکہ یہ مضاف بنا ہوا ہے. نو الف لام. اوکے. نیکسٹ یہ سینٹینس پڑھیے باب السیارۃ. یہاں پر کیا غلطی ہے؟ باب السیارتی ہونا چاہیے تھا. تو نہیں تی آتا. اوکے. رسول الرسول اللہ. کیا ہونا ہے یہاں پر؟ الف لام پہ الرسول کا الف لام نہیں آتا. رسول اللہ. ابن المدرسی. یہاں پر کیا ہے؟ ابن المدرسی تو کریکٹ ہے، المدرسی تو کریکٹ ہے. ابن المدرسی. ابن کا یہ تنوین نہیں آتی. ابن آتا، صرف سنگل پیش آتا. ابن المدرسی. اوکے. الحمدللہ. چلیے یہ ہو گیا آپ کی یہ والی بٹ. اور اس کے بعد تو آپ لوگ کو معلوم ہے، کرے آپ لوگ الحمدللہ. محمد سیاح محمد ہو گیا.
उस्तादुन या उस्तादु, कोई भी चीज को आप अगर बोलना चाह रहे या लगा रहे तो उससे पहले वो इसम पे दम्मा आती है सिर्फ, ओके, दम्मतन नहीं रहते। तो या मोहम्मदू, या उस्तादु, या खालिदू, या वलदू, ये जो है हर्फ निदा, और उसके बाद वाला जो इसम है वो हो गया मुनादा, हर्फ निदा और मुनादा, ओके। ये आप लोग को करेक्ट करना था। या अली, ये आप लोग ऑलरेडी बिट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या अलीयुन नहीं हो सकता, या अलीयु, या अब्बासु, शैखुन है, फिर या शैखु, या रिजाल, रजुलुन, रजुलुन है तो या रजुलु हो जाएगा। यासिरुन है, अगर यासिरुन पे हम या लगाए तो या यासिरु हो जाएगा। या अम्मारू, दुख्तूरुन है, या दुख्तूरू हो जाएगा, वो डॉक्टर मतलब की, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया आपका यहाँ तक। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम हमारे हॉलीडेज के बाद फिर जो है आगे का नेक्स्ट जो है कंप्लीट करेंगे, इसके बाद वाला यहाँ से फिर हम इंशाअल्लाह किताबुमन ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाअल्लाह, ओके। तो जैसे कि डाउट था ये, ओके, यहाँ पर जो है तहत सय्यारती का जो मैं बोली सेंटेंस नंबर 20, आइनल किताबु, वेयर इज द बुक पूछ रहे हैं यहाँ पर, ओके। हुआ तहत सय्यारती, इट इज अंडर द कार, वेयर इज, सॉरी किताबु नहीं है, अल कल्बु है, डॉग, वेयर इज द डॉग, हुआ तहत सय्यारती, इट इज अंडर द कार। तो अब यह तहत ज़र्फ है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ज़र्फ हम दो ही पढ़े अब तक, तहता और हुनाका दो पढ़े। तो तहता क्योंकि ज़र्फ है, उसके बाद वाला आने वाला इसम अस्सयारती होता, ओके, इसम मजरूर हो जाता। क्यों होता वो इसम मजरूर? क्योंकि वो मुदाफिले ही हो जाता, ठीक है। तो सिंपली जब आप इसकी बोलूंगी मैं आपको, हुआ तहता सयारती का करिए, तो आप तहता को मुदाफ और सयारती को मुदाफिले नहीं बोलना, आप बोलना तहता ज़र्फ और अस्सयारती मुदाफिले ही, ओके। तो ये इस तरह से है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, समझ आ गई। चलिए आप लोग का होमवर्क जो है ये 2 बिट्स आपको करना है, सेंटेंसेस के बाद वाले जो बिट 2 बिट्स हम करें ना, ये बस 2 बिट्स ही करिए इंशाअल्लाह। बिट नंबर 5 एंड 6, जो गलती दी हुई है उसको सही से लिखिए, सेंटेंस मुदाफ मुदाफिले बनाइए, और ऊपर वाले बिट में फिल अप द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको मुदाफ मुदाफिले के फॉर्म में जो भी ब्लैंक दिया हुआ है उसको उस तरह से इस्तेमाल करिए, चाहे वो मुदाफ का हो या मुदाफिले का हो। सिर्फ 2 सिंपल बिट्स जो है करिए इंशाअल्लाह, और हम मुलाकात करेंगे 18th को, आई थिंक 18 अप्रैल को हमारी क्लासेस फिर से रेज्यूम होगी इंशाअल्लाह तब। और लैलतुल क़द्र में खूब दुआएं करिए और अच्छी अच्छी इबादतें करिए, जो भी अब तक हमसे गलतियां हो गई है उसकी माफ़ी मांगिए, और जितना शॉर्ट कमिंग्स हमारे हुए, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है मौका है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी मेहरबानी है ये। और उस तरह से जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतें करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से रातें बढ़ती रहती थी ना, उस तरह से ज़्यादा इंटेंस हो जाते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में। तो अपने आप को उस तरह से करिए, क्योंकि वो हदीस है ना कि जो ठहरे, क़याम करे और क़ुऊद जगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश करे, उसके वास्ते जो है ना पूरे ज़ुनूब जो गुनाह रहते हैं वो पूरे माफ़ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। तो जो है, और जो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मैं जो दुआ है उसका एक्सप्लेनेशन इंशाअल्लाह शाम तक। अफ़ू और अस्तग़फ़ार का क्या डिफरेंस है? हम अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह तो बोलते रहते हैं, लेकिन अफ़ू का मीनिंग क्या है? जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैं जो है लैलतुल क़द्र को पाऊँ तो मैं जो है
किस तरह क्या मांगू अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या फ़अफ़ु अन्नी। हम सबको बोल सकते हैं अन्ना, अन्नी मतलब मुझे। तो इंशाअल्लाह इतना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है उसका। अफ़ू जो वर्ड है ना, ये गफरा जो है, हम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली जो बोलते रहते हैं, गफरा का मतलब है कि टू रिमूव द सिंस। ठीक है, रिमूव सिंस को रिमूव करना। इस तरह से होगा कि बंदा जो है अपना अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे जो भी हम गुनाह करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सवाल करेंगे, लेकिन गफर का मतलब है उसके ऊपर पर्दा डालिए बोल रहे हैं आप। ओके, जो गुनाह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे जो हम गुनाह करें उसके ऊपर हमको माफी दीजिए और उसके ऊपर पर्दा डालिए। लेकिन आफू का मतलब ये है कि जो भी हम गुनाह करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप उसको इरेज कर दीजिए, उसको मिटा दीजिए कम्प्लीटली। ओके, तो अगर आप कंपेयर करें दोनों इस्तिग़फ़ार और आफू में, तो आफू ज्यादा हायर दर्जे का है। और इसमें ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे पूछते बस जो आपके गुनाह थे वो पूरे इरेज हो गए। और जब इंसान के गुनाह इरेज हो गए तो फिर वो क्या होता, ऑटोमेटिकली जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो ये दुआ खूब करते रहिए, चलते फिरते दुआओं की रात और अफजल दिन और रात जो है आने वाले हैं इंशाअल्लाह। हर एक चीज, छोटी छोटी चीज में इंटेंशन यही करिए कि आप हालांकि सो रहे तो नींद में भी ये इंटेंशन करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं सिर्फ जो है ना, मेरे को एनर्जी होना है ताकि मैं आपकी इबादत कर सकूं, इसीलिए मैं जो है ना ये नींद ले रही हूँ। इस तरह से आप इंटेंशन रखिए अपने, छोटे से छोटे और काम जो है इबादत हो जाते हैं। किसी की मदद करना और जो है इस उसके ये कामों को छोटा नहीं समझिए कि हम लोग की हेल्प कर रहे। ओके, ये काम भी बहुत बड़े हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक। छोटी सी छोटी नजदीक किसी को पानी पिलाना, कोई आपसे पानी पूछे और उसको पानी पिलाया अगर आप, तो वो भी बहुत बड़ी नेकी है। तो हर नेकी को, कोई भी चीज को छोटा नहीं समझिए, सबको बहुत बड़ा 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 समझ के अपने जितने भी एफर्ट्स है वो डालिए। क्योंकि देखिए रमजान के 20 दिन तो ऐसे ही चले गए और आज से 21 भी स्टार्ट हो जाता। तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने जो है ना नेक कामों को इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल करम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत से ही जो है ना इंसान जो भी काम है वो कर सकता है इंशाअल्लाह। तो करिए और दुआओं में हम सबको याद रखिए, पूरी टीम को। और इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे फिर हमारे रमजान के बाद इंशाअल्लाह। अभी आपके कोई सवाल है तो हैंड रेज करिएगा ताकि मैं उन सबको लूँ। और ये आपका होमवर्क है, आई होप कि आपको होमवर्क समझ आ गया होगा 5th और 6th में। एनी क्वेश्चन गर्ल्स?